The first part, ethics, professional responsibilities, and general principles. Okay, great. So, how are you feeling? Like, have you done practice questions or? Yeah, yes. I just completed that. And I Okay, feel I'll go crazy if I do more MCQs now. okay. Okay, so how's find you find these MCQs like difficult or easy? Uh, the only issue that I am facing is first questions related to single audit, then Okay. questions related to uh, नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑडिट मतलब अटेस्टेशन वाले सारे जो है ना अच्छा अच्छा। उसमें थोड़ा डिफिकल्ट हुआ। फिर ये OMB वाले जो पार्ट है ना मुझे याद ही नहीं आ रहा था। OMB। OMB मैनेजमेंट बजट, ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट ऐसा कुछ है। अच्छा, ये वैसे टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब मैंने तो पहली बार सुना है ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट। ये इसमें एथिक्स में? हाँ, अभी मुझे आया क्वेश्चन तो इसलिए मुझे भी लगा कि एथिक्स में। अच्छा अच्छा। बाकी सब ठीक है, अभी थोड़ा ग्रिप बन गया है। ठीक है, चलो ग्रेट। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही आएंगे सिमुलेशंस भी, बल्कि स्टार्ट कर दो थोड़े थोड़े। आप जैसे 2-3 टाइम्स कर लोगे ना, आपको खुद लगेगा कि मुझे खुद से आते जा रहे हैं, मतलब कंसेप्ट क्लियर ओके, होते जा रहे हैं। ठीक है। आज हाँ। एक स्टिमुलेशन साथ में सॉल्व करें क्योंकि मैंने आज तक कभी किया नहीं है, अच्छा मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, है आपके पास सिमुलेशन? हाँ मतलब ये पोर्टल पे तो है, हम वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। चलो बताना, अगर क्लास जल्दी ओवर हो जाती है तो फिर हम सिमुलेशन कर लेंगे। ठीक है। ठीक है। ओके, डन। चलो, हमारा ये टॉपिक था, कल स्टार्ट किया था जो सब्सिक्वेंट इवेंट एंड सब्सिक्वेंट डिस्कवर्ड फैक्ट। हाँ। So subsequent event क्या था? Is an event or a transaction that basically occur after the balance sheet date but before the date of auditor's report and has a material impact on the financial statement. So there were basically two types of subsequent event. First is adjustment type. Second is disclosure type. Adjustment types means which require some adjustment on the financial statement. So these are the event which basically exist, their condition exists at the balance sheet date and they affect the financial statement, therefore they require some adjustment in your financials. Okay, like losses on receivable resulting from bankruptcy, and that bankruptcy existed at the balance sheet date, so you have to adjust your financials for this event. Settlement of litigation, or that litigation should exist at the balance sheet date, there is ongoing litigation and result of litigation occur after year end, but the condition since existed at the balance sheet date, so you need to do the adjustment in your financial statement. Okay. Final हाँ। determination of an amount that was estimated at the balance sheet date. So if you are estimating some amount and you have final determination of that amount after the balance sheet date, but that condition existed at balance sheet date, then you need to do adjustment in your financials. Whereas disclosure type, disclosure type event means that occur after the balance sheet date and they do not have any conditions existed at the balance sheet date, but they require a disclosure in your financial statement so that it should not be misleading. Okay. So suppose you have mentioned your equity uh, in your balance sheet date at December 31 is something, but soon after this like year end, in the next year you have like sell your equity, you have buy back your bonds or buy back your stock. So if a user will read that financial statement, he will look for the equity and he will found it in balance sheet date this equity is this mentioned, but currently it is this. So how is the difference
So therefore, they require some disclosure that you have to disclose this event in your financial statement so that it should not be misleading. Okay. हाँ. सो सपोज अभी आप मेंशन कर रहे हो कि आपकी तो 4 लाइन ऑफ बिजनेस है, लेकिन सून आफ्टर द बैलेंस शीट डेट आपने एक लाइन ऑफ बिजनेस सेल कर दिया, तो ये यूजर्स को पता होना चाहिए, बिकॉज वो तो यही समझेंगे कि अभी भी आपके 4 ही हैं. तो अगर आप एडजस्टमेंट नहीं कर रहे इन इवेंट्स की, लेकिन डिस्क्लोजर स्टिल देने जरूरी है. ठीक है, समझा. Okay. The following are the examples of event that would not normally be considered as subsequent event, like product changes, changement in management, loss of customer, strike, proxy fight. So these are not subsequent event actually. Okay. प्रॉक्सी फाइट क्या होता है? Hmm? प्रॉक्सी फाइट्स. Means like some fights between people. Or just a minute, I will check. Yes. Like unfriendly contest for control over an organization. Yes, it is. As I told you, that it is basically battle between peoples. Okay, between some shareholders to have some control over the company. ओके. Okay, so these are not actually the subsequent event which require disclosure. The CP is required to perform some detailed audit procedure after the balance sheet date. Such procedure we already discussed, that you have to perform cut-off procedure, evaluation of asset and liabilities at balance sheet date. So you need to evaluate this to look for your subsequent event. In addition, you can also perform certain procedures related to subsequent event, like you can read and review interim financial statement. You can read minutes of stockholder directors office meetings, so that if they have discussed some matter related to subsequent event in their meetings, you can inquire for legal counsel regarding any litigation that is ongoing in the company. Observe event in subsequent period. Scan record for unusual transactions. So if you're finding any unusual transactions, you may look for their record. Obtain representation letter you can obtain from management. You can also do the inquiry with management, TCWG, if they have like knew about some event that may affect the financial statement. You can also inquire about current items that were accounted for on the basis of preliminary or inconclusive data, and may make specific inquiries about the following matters, like whether new commitment, borrowing, or guarantees have been entered into. So you may inquiry from this from these of these some of these statement from the management, like if there is something commitment, borrowing, guarantees that the management has done, some sale or acquisition of asset, if they have occurred or they have planning to do that, whether they have been increase in capital, issuance of debt instrument. Okay, कि क्या कोई asset की like acquisition करने वाले हैं, या कोई डेप्थ में चेंज आने वाला है, या कोई इक्विटी में चेंज आने वाला है, या आ चुका है. You may inquire from management whether there have been any development regarding contingencies, any unusual accounting adjustment, any event that have occurred or likely to occur that will bring into question the appropriateness of accounting policies used in the financial statement, as would the case. Okay, so if such event call into the question the validity of going concern assumption, whether any event have occurred that are relevant to the measurement of estimate or provisions, whether any event that have occurred that are relevant to recoverability of assets. So if yours like some of your bad debt which you have shown in your shown as your bad debt, and the that bad debt is going to now recover.
So you may look for these events, whether there have been changes in any entity's related party, there have been significant new party transaction, or whether the entity has entered into significant unusual transaction. So these are some of related to the subsequent event. Okay, subsequent event जो बैलेंस शीट डेट के बाद हुए हैं लेकिन बिफोर द ऑडिटर्स रिपोर्ट. इज इट क्लियर? Yes. नेक्स्ट आता है आपका सब्सिक्वेंट डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट. तो सब्सिक्वेंट डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट का क्या मतलब है कि आपके कुछ ऐसे मैटर जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट डेट पे एग्जिस्ट तो करते थे लेकिन यू हैव नॉट नोन एट दैट टाइम कि अभी तक वो बैलेंस शीट डेट के थे. ये क्या है कि अभी आपकी रिपोर्ट मान लो इशू भी हो चुकी है और लेटर ऑन आपको कोई चीज पता चल रही है जिसकी कंडीशन आपकी ऑडिट रिपोर्ट डेट पे एग्जिस्ट करती थी, मतलब उस टाइम पर आपको वो कंसीडर करनी चाहिए थी लेकिन आपके पास उस टाइम पे वो नॉलेज नहीं थी जिसकी वजह से वो चीज रह गई और वो आपको लेटर ऑन पता चल रही है. तो एज एन ऑडिटर आप क्या करोगे? ठीक है, वापस एक्सप्लेन करना. ओके. सो सब्सिक्वेंट डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स का क्या मतलब है कि सपोज यू हैव इशूड योर ऑडिट रिपोर्ट. ठीक है, उस रिपोर्ट इशू करने के बाद आपको कोई चीज पता चलती है, कोई भी किसी भी चीज से रिलेटेड मैटर कोई पता चलता है जिसकी कंडीशन आपकी ऑडिट रिपोर्ट डेट पे एग्जिस्ट करती थी. मींस आपको उस टाइम पे वो कंसीडर करनी चाहिए थी लेकिन क्योंकि आपको वहां उस टाइम पर नॉलेज नहीं थी उस इवेंट की तो आपसे वो छूट गया. ओके. लेकिन लेटर ऑन अब आपको पता चल रहा है, उसके बाद आप क्या करोगे एज एन ऑडिटर? व्हाट विल बी योर ड्यूटी? So subsequent discovery is the discovery of fact that existed at the date of audit report but were known at that time. ठीक है, जिनकी जो एग्जिस्ट तो करते थे लेकिन आपको पता नहीं थी उस टाइम पर. Okay. It is not an event that occur after the report date or resolution of the contingency that existed at that date. The CPA must take into account the impact of subsequent discovered fact on the auditor's report. So you need to first check कि क्या उसका impact पड़ सकता है auditor की report पर. The auditor has no obligation to perform any further audit procedure after report date, but if new information come to the auditor's attention, then in that case, as an auditor, you can consult with the attorney and determine if the subsequently discovered information is reliable, existed at the date of report, is material, and is applicable to the report that is still being relied on. So, as an auditor, आपने audit report issue कर दी, उसके बाद तो आपकी कोई responsibility नहीं रहती जनरली कोई प्रोसीजर दोबारा परफॉर्म करना या कुछ भी नहीं, क्योंकि आप अपनी रिपोर्ट इशू कर चुके हो. लेकिन अगर आपको कोई ऐसा मैटर पता चलता है कल को कि जो जिसकी कंडीशन आपकी ऑडिट रिपोर्ट डेट पर एग्जिस्ट करती थी, मतलब उस डेट तक वो कंडीशन उसकी एग्जिस्ट करती थी, ऐसा नहीं है कि वो इवेंट हुआ ही बाद में है, लेकिन उसकी कंडीशन अगर आपकी रिपोर्ट डेट पर एग्जिस्ट करती थी तो उस केस में यू नीड टू टेक इट एज सब्सिक्वेंट डिस्कवर्ड ऑफ द फैक्ट. अगर वो आपकी इंफॉर्मेशन रिलायबल है, बैलेंस शीट रिपोर्ट डेट पे एग्जिस्ट करती है और मटेरियल भी है कि जिसका मटेरियल इम्पैक्ट पड़ सकता है आपकी फाइनेंशियल्स पर. ठीक है, जिसकी वजह से आपकी ऑडिट रिपोर्ट मिसलीडिंग भी बन सकती है बिकॉज पीपल आर स्टिल रिलाइंग ऑन दैट रिपोर्ट. समझ गए? तो ये आपकी सब्सिक्वेंट डिस्कवर्ड फैक्ट कहलाता है और इसके रिगार्डिंग ऑडिटर अपने अटॉर्नी से भी कंसल्ट कर सकता है. इफ 4 कंडीशन एग्जिस्ट द ऑडिटर शुड डू द फॉलोइंग. तो अब आपको कोई सब्सिक्वेंट डिस्कवर्ड फैक्ट मिलता है तो उस केस में एज एन ऑडिटर यू विल फर्स्ट आस्क द क्लाइंट टू रिवाइज एंड रीइश्यू द स्टेटमेंट एंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट. ठीक है, तो सबसे पहले आप किसके पास जाओगे? सपोज आपने कोई प्रोसीजर ओमिट कर दिया या आपको कोई चीज लेटर ऑन पता चली है जिसका आपकी फाइनेंशियल्स पर इम्पैक्ट पड़ सकता है डायरेक्टली और मटेरियली.
ठीक है, और उसकी कंडीशन आपकी रिपोर्ट डेट पर एग्जिस्ट करती थी, तो उस केस में आप क्या करोगे? अगर तो मटेरियल इम्पैक्ट है तो बताना ही पड़ेगा आपकी मैनेजमेंट को। तो यू विल फर्स्ट आस्क योर क्लाइंट, योर क्लाइंट्स मैनेजमेंट, कि वो उस फाइनेंशियल्स को रिवाइज करे और आपकी ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज करे और री इशू करे। ठीक है, मेक डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट of subsequent period if the date of issue is imminent. So अगर आपकी ऑडिट रिपोर्ट डेट जस्ट इशू होने वाली है, मतलब इशू नहीं हुई, तो उस केस में यू विल इंश्योर डेट मैनेजमेंट डिस्क्लोजर देते उस सब्सिक्वेंट पीरियड की फाइनेंशियल्स में। ओके। Notified person relying on the statement of fact that are known to the auditor if the effect cannot be promptly determined and is appear on the financial statement will be revised after the investigation. So you can also like notify the people who are actually relying on those statement कि अगर आपको जो भी फैक्ट पता चला है और उस फैक्ट से रिलेटेड अगर कुछ पीपल वो इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, यू मे हैव द ड्यूटी टू इन्फॉर्म दोज पीपल। डिस्कस विद SEC और रेगुलेटरी बॉडी इफ अप्रोप्रिएट। सो इन केस अगर आपको अपनी राइट्स या ऑब्लिगेशंस नहीं पता है, आपको कोई मैटर रिलेटेड कुछ डिस्कशन करनी है, यू कैन ऑल्सो डू डिस्कस दिस विद SEC या रेगुलेटरी बॉडी से आपको कुछ राइट या ऑब्लिगेशन अपने समझने हैं इसके रिगार्डिंग, तो आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, ओके। अभी ये जो हम जो पर्सन्स रिलाई कर रहे हैं ये ऑडिट रिपोर्ट पे, तो हम उन्हें नोटिफाई कैसे करेंगे? अभी मैं बताती हूँ, अभी आगे आएगा। सो ठीक है। सबसे पहली ड्यूटी आपकी क्या है कि आप क्लाइंट को जाके इन्फॉर्म करोगे। ठीक है, हाँ। if client refuses to cooperate in disclosing the fact, अब क्लाइंट आपका या तो आपको कॉपरेट कर देगा कि यस आप रिवाइज कर लो रिपोर्ट को, ठीक है, आप मैनेजमेंट अपनी फाइनेंशियल्स भी रिवाइज कर देगा, ऑडिट रिपोर्ट भी रिवाइज कर देगा, तो उस केस में देयर इज नो प्रॉब्लम, आप सिंपली मैनेजमेंट भी रिवाइज कर देगी, आप भी रिवाइज कर दोगे। ठीक है, अगर वो ऑडिट रिपोर्ट अगर थर्ड पार्टी को ऑलरेडी मिल चुकी है, तो आप थर्ड पार्टी को भी इन्फॉर्म कर दोगे कि यस द ऑडिट रिपोर्ट हैज बीन रिवाइज्ड नाउ। ठीक है। क्लियर? लेकिन अगर आपकी क्लाइंट रिफ्यूज कर दे to cooperate in disclosing the fact, the auditor should notify the following. So you need to notify the client that the audit report cannot be associated with the statement. So इस केस में आप क्या करोगे? आप अपनी मैनेजमेंट TCWG को इन्फॉर्म करोगे, रेगुलेटरी बॉडीज को, और ईच पर्सन इफ यू नो कि जो ऑडिट रिपोर्ट पे रिलाय करने वाला है, तो आप उन सबको जाकर इन्फॉर्म कर दोगे कि यस दिस ऑडिट रिपोर्ट इज do not need to rely on this audit report because it has something missing. So you in case अगर मैनेजमेंट आपको कॉपरेट नहीं करती, तो उस केस में आप सिंपली क्या करोगे? एज एन ऑडिटर आप लीगल एडवाइस ले सकते हो कि मतलब आपको क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाहिए यहाँ पर, और इसके साथ साथ आप जो भी मतलब रिपोर्ट को यूज कर रही हैं, पर्सन्स जो भी यूज कर रहे हैं, आप उन्हें नोटिफाई कर दोगे, चाहे वो आपके क्लाइंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, रेगुलेटरी बॉडीज है, या कोई भी थर्ड पार्टी है जो उस रिपोर्ट को यूज कर रही है, यू हैव टू like notify them कि this audit report is not need to rely on. When the auditor make a satisfactory investigation, disclosure should consist of precise and factual statement of fact known by auditor and effect on financials and auditor's report. So अगर auditor उस मैटर के रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन कर लेता है, तो उस केस में यू नीड टू डिस्क्लोज कि लाइक क्या क्या चीजें पता चली ऑडिटर को और उसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं। अगर क्लाइंट रिफ्यूज कर दे, डिस्क्लोजर बाय द ऑडिटर कैन नॉट बी प्रिसाइज एंड शुड कंटेन अ स्टेटमेंट दैट द क्लाइंट हैज नॉट कोऑपरेटेड। सो अगर क्लाइंट आपको कोऑपरेट नहीं करती, यू कैन ऑल्सो डिस्क्लोज देम कि जो क्लाइंट है इट इज नॉट कोऑपरेटिंग। इज इट क्लियर? हाँ।
तो सब्सिक्वेंट डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स का क्या मतलब है कि आपको कोई इंफॉर्मेशन लेटर ऑन पता चली है जिसकी कंडीशन आपकी लेकिन ऑडिट रिपोर्ट पर एग्जिस्ट करती थी, तो उस केस में अगर वो मटेरियल है तो एज एन ऑडिटर आपकी क्या ड्यूटी है, आप पहले से क्लाइंट के साथ डिस्कस करोगे, क्लाइंट को नोटिफाई करोगे उसके बारे में। अगर क्लाइंट आपको फाइनेंशियल्स को रिवाइज करने देता है, फाइनेंशियल्स और ऑडिट रिपोर्ट को, उस केस में आप अपनी मतलब मैनेजमेंट अपनी फाइनेंशियल्स रिवाइज कर देगी, आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज कर दोगे और थर्ड पार्टी को इन्फॉर्म कर दोगे अगर थर्ड पार्टी ने यूज कर रखी है, मतलब ऑडिट रिपोर्ट कर रहे हैं वो यूज ऑलरेडी। ठीक है, अगर मैनेजमेंट आपको मना कर देती है फिर उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप लीगल एडवाइस लेकर देख सकते हो, आप थर्ड पार्टीज को या जो भी पार्टी उस पर रिलाई कर रहे हैं आप उन्हें नोटिफाई कर सकते हो कि जो फाइनेंशियल्स है वो आपकी लाइक उसमें सब कुछ मिसिंग है, आपकी ऑडिट रिपोर्ट रिलायबल नहीं है। ठीक है, ताकि कल को एज एन ऑडिटर आप लायबल ना हो किसी चीज के लिए। ओके। नेक्स्ट आता है अगर आप रिव्यू कर रहे हो, तो रिव्यू के केस में आपको क्या करना है। The accountant is not required to perform any review procedure regarding financial statement after the date. So since we already discussed कि अगर आप कुछ ऑडिट कर रहे हो, रिव्यू कर रहे हो, तो रिपोर्ट इशू होने के बाद आपकी जनरली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर आपको सब्सिक्वेंट मैटर पता चलता है तो you need to discuss with management, TCWG and determine whether कि क्या financials में revision चाहिए या नहीं चाहिए। Inquire management intend to address the matter in the financial statement कि अब management अपने financials में उस मैटर को डिस्कस करने के लिए तैयार है या नहीं, मीन्स रिवाइज करने के लिए रेडी है या नहीं। सो इफ द मैनेजमेंट रिवाइजेस द फाइनेंशियल्स, then as an accountant you have to perform some necessary procedure and revise your review date accordingly. So you can use the date, the accountant review date as of the later date, or include an additional date in the accountant review date on the revised financials that is limited to the revision. So इस केस में आप क्या कर सकते हो, ये होते हैं आपके ड्यूअल डेट, कि अब आपने एक रिपोर्ट ऑलरेडी इशू कर चुके हो, जैसे मान लो आप आज 30 नवंबर को आप एक रिपोर्ट इशू कर चुके हो, लेकिन अब आपको दिसंबर में कोई चीज पता चलती है और आप अब न्यू रिपोर्ट इशू करना चाहते हो, तो उस केस में क्या कर सकते हो आप अपनी न्यू रिपोर्ट में न्यू डेट लगाकर भी इशू कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो कि जो आपकी पुरानी रिपोर्ट है उसकी डेट सेम रहे, बट जो एडिशनल मैटर आपको पता चला है आप बस उसकी डेट चेंज कर दो कि दिस मैटर इज डिस्कवर्ड ऑन दिस डेट जैसे। क्लियर? हाँ। If management does not revise the financial statement in circumstances when the accountant believed that they need to be revised, the accountant should modify the review report as appropriate. If subsequent discovered fact become known to the accountant after the report release date, you should discuss with the management, determine whether the financials need revision or not. Or if management revises the financial statement, the accountant should apply the requirement of ARC this if review financial statement have been already made to the third parties, assess whether the steps taken by management are timely and appropriate to ensure that receipt of those financial is informed to this of the situation, including that the review financials are not to be used. So if management does not make the necessary step, the accountant should apply the requirement of this. So as I told discussed earlier कि अगर मैनेजमेंट आपकी फाइनेंशियल्स को रिवाइज करने के लिए तैयार हो जाती है तो आप क्या करते हो, थर्ड पार्टीज को इन्फॉर्म करके चलते हो कि अगर उनके पास वो ऑलरेडी रिपोर्ट पहुंच चुकी है, ठीक है, आपको उन्हें इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा ना कि वो रिपोर्ट में कुछ मिसिंग है और हम रिपोर्ट को री इशू करने वाले हैं। ओके। If the accountant conclusion on the revised financials differ from the accountant conclusion on original financials, disclose in an emphasis of meta paragraph. Okay, so अगर आप अपना opinion change कर रहे हो अब आप या अपना conclusion change कर रहे हो तो
उसको उसके लिए आपको एक डिसइम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ अपनी रिपोर्ट में एडिशनल शो करके चलना होगा, कि जिसमें आप प्रीवियस रिपोर्ट की डेट मेंशन करोगे, डिस्क्रिप्शन मेंशन करोगे कि रिवीजन क्यों हो रही है, और बेसिक सब्टेंटिव रीजन क्या है बेसिकली रिवीजन का, कि क्यों आप अपना कंक्लूजन अब चेंज करने वाले हो। ठीक इज है। इट क्लियर? सो हाँ। इफ मैनेजमेंट डज नॉट रिवाइज, अब मैनेजमेंट अगर रिवाइज नहीं करने देती आपको, तब आप क्या करोगे? सो यू विल नोटिफाई मैनेजमेंट TCWG, ठीक है, और not to make the review financial statement available to third parties before the necessary revision have been made and new review report on the revised financials have been provided. So agar review statement are nevertheless subsequently made available to third parties without necessary revision, the accountant should apply the requirement of ARC. This means again अगर आपकी मैनेजमेंट मना कर देती है तो you will notify the people जो जो उस रिव्यू रिपोर्ट को यूज करने वाले हैं, और यू कैन ऑल्सो नोटिफाई दी मैनेजमेंट TCWG, और उनको ये इंश्योर करो कि वो थर्ड पार्टीज को देना दे बिना रिवीजन के रिपोर्ट, और अगर दे रहे हैं तो यू नीड टू लाइक inform them that this review report is not complete. Okay, हाँ, बट is अगर it? हम जैसे थर्ड पार्टी को इन्फॉर्म करें कि ये रिपोर्ट कंप्लीट नहीं है, मैनेजमेंट ने चेंजेस एक्सेप्ट नहीं किए, ना ही चेंज हाँ, करने दी, तो हम रेगुलेटरी बॉडीज को इन्फॉर्म नहीं कर सकते कि द मैनेजमेंट इज नॉट देखो, चेंजिंग। सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की रहेगी। आप पहले मैनेजमेंट को बोलोगे कि या तो वो रिवाइज करने दे, या फिर थर्ड पार्टीज को जिसको उसने रिपोर्ट इशू करी है उनको सबको इन्फॉर्म करे। लेकिन अगर हाँ। मैनेजमेंट ही मना कर देती है ये आपको कॉपरेट करने से, तो फिर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप खुद से जाकर उनको मतलब खुद से उनको इन्फॉर्म करो, बिकॉज एट लास्ट दे आर गोइंग टू रिलाई ऑन योर रिपोर्ट। ओके। ठीक है, तो इसलिए आपकी क्या ड्यूटी है कि आप उन्हें जाके इन्फॉर्म करो कि अगर मैनेजमेंट इन्फॉर्म नहीं कर रही तो। ठीक है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट आती है आपकी अटेस्टेशन एंगेजमेंट रिगार्डिंग। So while accountant has no responsibility to detect subsequent event after the date of report, but you should inquire of the responsible party as they are aware of any subsequent event through the report date. So the written representation letter contain a representation about subsequent events. So subsequent event regarding हम already discuss कर चुके हैं। If the accountant become aware of the event where disclosure is necessary to prevent users of the report from being misled, the information about the event is not adequately disclosed by a responsible party in the subject matter, the accountant should take the appropriate action. So, in case अगर disclosure necessary है, तो you will ask the responsible party कि वो अपनी subject matter regarding disclosure दे, otherwise you need to take some appropriate actions. ठीक है, यहाँ आपके अटेस्टेशन में क्या है, पूरी फाइनेंशियल्स ना होकर सब्जेक्ट मैटर इन्वॉल्व होते हैं। सो अगर उस सब्जेक्ट मैटर से रिगार्डिंग कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है कि जिसका उस सब्जेक्ट मैटर पे इम्पेक्ट पड़ सकता है और मटेरियल पड़ सकता है, तो यू नीड टू टेक द अप्रोप्रिएट एक्शन, लाइक कि कैसे आपकी वो डिस्क्लोजर देना है या आपकी रिपोर्ट चेंज करनी है। क्लियर? सो ये हाँ। था आपका सब्सिक्वेंट डिस्कवरी ऑफ फैक्ट। ठीक है, अब आपको सिमुलेशन करना है ना? हाँ। ठीक है, तो आपके पास है या मैं खुद से कुछ देखूं? पोर्टल पे है मेरे पास, ऐसा अलग से कुछ नहीं है। अच्छा, मैं ऐसे करती हूँ फिर, मतलब मैं अपने उससे करवा देती हूँ कोई, क्योंकि मुझे ना ये आपके वाले इस पे पता नहीं है कहाँ है सिमुलेशंस। वो बताती हूँ, नीचे स्क्रॉल करो हम्म। और नीचे ये जो है ना स्टिमुलेशन का है, अच्छा। बट इसमें वो सिलेक्ट करना डिफिकल्ट होगा। ऊपर आ जाओ। हम्म। अभी ये जो एथिक्स वाला पार्ट है ना,
थोड़ा अच्छा। नीचे। इसमें एरो पे क्लिक करो। अभी हमें कौन सा स्टिमुलेशन करना है वो सिलेक्ट करते हैं, कौन से पार्ट का। अच्छा, आपको वैसे मैं बताती हूँ, आपकी इसमें ज्यादातर सिमुलेशंस आपके उससे आते हैं, सब्टेंटिव प्रोसीजर से, इंटरनल कंट्रोल से। ठीक है, आपके एमसीक्यूज ज्यादा अटेस्टेशन एंगेजमेंट से आते हैं। ओके, तो ये जो स्टडी क्वेश्चन है ना, वहाँ पे स्टिमुलेशन होता है। अच्छा, ये स्टडी क्वेश्चन हाँ। सिमुलेशन है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कोई। 5 क्वेश्चंस पे क्लिक करके नीचे आएगा स्टिमुलेशन। क्वेश्चन नहीं, वहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा स्टिमुलेशन। अच्छा, सॉरी। ठीक है, ये है आपके फर्स्ट। ठीक है, इसमें एक टाइम पर एक ही आता है। हाँ, एक सॉल्व होगा फिर नेक्स्ट। सॉरी। ठीक है। एक मिनट, मैं आ रही हूँ, एक सेकंड। ओके। ठीक है, चलो। आपके एग्जाम्स में क्या होता है ऐसे? आपकी टेस्टलेट्स बन के आती है, जैसे एक में 3 सिमुलेशंस हो गई, फिर अगले में 2 हो गई, फिर 3 हो गई, ऐसे करके। ओके। ठीक है, तो आपकी मतलब टेस्टलेट में अगर 3 सिम्स हैं तो आप तीनों में से कोई भी पहले कर सकते हो, लेकिन अच्छा। अगली टेस्टलेट पे जाने के लिए आपको वो कंप्लीट करने पड़ेंगे, लेकिन ऐसे होता है। ओके। ठीक है, अब सिमुलेशंस में क्या होता है, आपकी सिमुलेशन ऐसे इतनी छोटी भी आ सकती है कि जिसमें सीधा यहाँ आपकी सिलेक्ट करने वाली चीजें हैं। हाँ। नहीं तो सिमुलेशंस में आपकी क्या आ सकते हैं कि कुछ यहाँ पर डेटा दे दिया पीडीएफ्स में, हम्म। मतलब वो लॉन्ग टास्क बेस्ड सिमुलेशंस होती है जिसमें वो रीड कर करके आपको चीजें ढूंढनी है। ओके। ठीक है, आपके मतलब सिमुलेशंस बड़े भी आएंगी, छोटी भी आएंगी। जैसे ये तो आपकी हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगेंगे इसमें सॉल्व करने में आपको। कुछ हाँ। में आपको 40 मिनट्स भी लग सकते हैं अगर आपकी लेंथी है तो। ठीक है, तो मैं आपको, हाँ। अगर कहते हो तो मैं आपको यहाँ से भी दिखा देती हूँ, जो मेरे पास थी सिमुलेशन। हाँ ठीक। हाँ, ये आई थिंक, ओके। इस तरह की देखो, कि जिसमें ये आपको कुछ पीडीएफ्स दे दी और इसमें कुछ इश्यूज हैं। देखो, जैसे ये अलग अलग पीडीएफ्स हैं, इनको रीड करना है आपको और उसके बेसिस पर आंसर करना है। ठीक है।
ठीक है, अगर ये देखोगे तो ये रीड करो और हाँ ये जैसे यहाँ पर कुछ सिलेक्शन वाले, जैसे ये आपको कोई परचेज साइकिल के रिगार्डिंग इन्फो दे रखी है, इसको रीड करो, इसको परचेज ऑर्डर के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, फिर आप ये अपना क्वेश्चन रीड करो, जो चीज आपको इसमें ढूंढनी है, मतलब जो आंसर देना है उसको देखो कौन सा रेलेवेंट होगा इस केस में। तो आपकी मिक्स ओके आएंगी, मतलब कुछ डायरेक्ट भी आएंगी, जैसे इस तरह की भी आएंगी, कुछ इस तरह की भी आएंगी। देन ठीक है, ऑडिट के पेपर में आपको हर ट्राई उसमें करती हूँ आज लगेगा एक कि कौन सा सिमुलेशन आंसर सॉल्व सिलेक्ट करने का, करूं। इफ कुछ डाउट या कुछ डाउट। हाँ चलो करोगे। The engagement manager has obtained a trial balance and identify how the account below for further review. For each of the account in the table, click in the associated cell and select from the menu the most appropriate answer or request KD's controller during the course of review. ठीक है, अब ये आपका बेसिकली इंटरनल रिव्यू हो रहा है, तो उस केस में आपको बताना है कि रिव्यू करते समय कि आप क्या चीज एज अ कंट्रोलर, आप कंपनी के कंट्रोलर हो, रिव्यू कर रहे हो उसकी इंटरनली, तो आप क्या चीज क्या क्वेश्चन पुट कर सकते हो या क्या रिक्वेस्ट कर सकते हो कि क्या चीज आपको चाहिए इस केस में, जैसे कैश की टेस्टिंग करते वक्त आपको क्या करने की जरूरत है। आर देयर एनी इन्वेस्टमेंट, आर देयर कंपनसेटिंग बैलेंस और अदर restriction, have there been proper cut off of sale, prepare and sign confirmation, prepare, please provide an outstanding checklist, provide the sample of account receivable or interest income. So I think this is very easy. आपकी कैश के केस में इन्वेस्टमेंट, कट ऑफ, इन सब का क्या काम, तो आपको हाँ, क्या लग रहा है क्या कौन सा आंसर होना चाहिए। आर देयर compensating balances और other restriction? ओके चलो चूज करते हैं। नेक्स्ट अकाउंट रिसीवेबल के केस में accounts reconciliation? ठीक है, ये तो वैसे बहुत सिंपल है क्वेश्चन, आपके एग्जाम में इतने सिंपल नहीं आएंगे लेकिन ठीक है, हाँ मतलब छोटे इतने हो सकते हैं लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग तो होंगे। इन्वेंट्री के ओके। रिगार्डिंग बताओ चलो। कंसाइनमेंट, कैपिटलाइजेशन, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, आपको कौन सा ज्यादा रेलेवेंट लग रहा है। एक मिनट। where consignments in or out considered taking a physical count? ठीक है, अगला फिक्स्ड असेट, कंसाइनमेंट, अकाउंट रिसीवेबल है नहीं आपका, कंपनीज कैपिटलाइजेशन पॉलिसीज और फिजिकल इन्वेंट्री काउंट। Fixed physical inventory count? हम्म, बट फिक्स्ड नहीं असेट्स नहीं में नहीं। वो भी तो चेक करते हो कि क्या कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस हुई है, जैसे कैपिटलाइज करना चाहिए था लेकिन आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस में डाल हाँ, दिया। अकाउंट पेबल, अकाउंट पेबल मतलब हमें जिसको पैसे देने हैं। यस, हमारे तो क्रेडिटर्स। अकाउंट रिकंसिलेशन? अकाउंट रिकंसिलेशन, मतलब पे करना है, लाइबिलिटी हुई तो सैंपल ऑफ इनवॉइसेस टू परफॉर्म फॉर सर्च ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज? यस नहीं, अनरिपोर्टेड लायबिलिटीज के लिए हम सर्च करते हैं। मतलब हमें जिसको पैसे देने हैं तो वो हमारी लाइबिलिटी हुई, बराबर। हाँ, और वैसे हमारी लायबिलिटीज की केस में ये इम्पोर्टेंट टेस्ट रहता है कि हम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज के लिए चेक कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, ओके। डेप्थ के केस में डेप्थ भी वैसे लायबिलिटी ही है। लोन amortization schedule? ओके चलो लेट्स चेक।
ओके 50% करेक्ट। ठीक। एक मिनट, ये तो हमारा ठीक था, फिर कौन से गलत हुए हैं? अकाउंट्स रिसीवेबल के लिए कट ऑफ सेल्स ट्रांजैक्शन होना चाहिए था। आंसर्स है ना साइड में, राइट साइड में। अच्छा, फिक्स्ड असेट के लिए कैपिटलाइजेशन, और अच्छा डेब्ट के लिए हमें असेट हैव बीन प्लेज्ड कोलैटरल, और फिफ्थ में हैव ऑल द लायबिलिटीज बीन अप्रोप्रिएटली अक्रूड। ओके। चलो एक और करके देखते हैं। ठीक है। आप ये तो समझ लो, मतलब ऐसे ही आएंगे आपके हाँ एग्जाम्स हाँ। सिमुलेशन। ओके, ऐसे ये भी आएंगे। नेक्स्ट है आपका प्लूटो सीपी इज कंप्लीटिंग द ऑडिट ऑफ लॉट इनकॉर्पोरेशन अ नॉन इशूअर एज ऑफ द ईयर एंडेड December 31st year 4. The engagement team has prepared audit work paper based on cash audit program. The materiality is given. Review the document in the exhibit. Exhibit आपकी ये रही, आपको डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं एग्जिबिट में, और देन फॉर ईच प्रोसीजर द रिलेटेड असर्शन इज गिवन एंड यू नीड टू डिटरमिन कि क्या आपकी ऑडिट टीम ने सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट एविडेंसेस गैदर किए हैं। इन मेकिंग दैट डिटर्मिनेशन कंसीडर वेदर द वर्क पेपर हैव बीन अप्रोप्रिएटली प्रिपेयर्ड, और इफ देयर आर इशू विद ऑडिट एविडेंसेस obtained or the work performed. If sufficient and appropriate audit evidence have not been obtained for the audit procedure, you need to identify the issue and select additional audit test. आप क्या करोगे? तो सबसे पहले आपके बेसिकली जैसे असर्शन, एग्जिस्टेंस या एक्यूरेसी के लिए ये प्रोसीजर परफॉर्म किया गया। आपको बताना है कि क्या इससे आपको सफिशिएंट एविडेंस मिले हैं या नहीं मिले, इशू, और अगर आपको एडिशनल टेस्टिंग चाहिए तो क्या होनी चाहिए वो टेस्टिंग। जैसे आपने ऑब्टेन स्टैंडर्ड बैंक कंफर्मेशन फॉर ऑल बैंक अकाउंट, आपने क्या किया, जो जो बैंक अकाउंट में कंपनी का पैसा पड़ा है आपने वो सारी बैंक कंफर्मेशन ले ली। हाँ। देन यू ट्रेस द बैलेंस पर बुक कंफर्मेशन टू द बैलेंस रिकंसिलेशन, बैंक रिकंसिलेशन एंड इन्वेस्टिगेट एनी एक्सेप्शंस नोटेड। सो इस केस में आपने क्या किया, फिर ट्रेस द बैलेंस फॉर द बैंक कंफर्मेशन टू द बैंक रिकंसिलेशन। तो आपने जो भी बैलेंस मिला उसे बैंक रिकंसिलेशन से चेक किया, और फिर कुछ अगर आपको एक्सेप्शंस दिखी तो इन्वेस्टिगेट की। ये टेस्ट आपने किसके लिए किया है, एग्जिस्टेंस और एक्यूरेसी के लिए। तो आपको क्या लगता है कि ये सफिशिएंट आपका अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हुआ या नहीं हुआ? इसमें लेकिन वो सिलेक्शन ही नहीं आ रही है। नीचे वो ब्लू पे क्लिक करो, अच्छा, ऊपर वाले ब्लू में। ठीक है, सॉरी। अच्छा आप बताओ, यहाँ से आपको सफिशिएंट एविडेंस मिले या नहीं मिले, इशू क्या है आपके इस केस में, और आपको टेस्टिंग क्या करनी है। अब यहाँ से पहले आपको एग्जिबिट्स भी पढ़नी पड़ेंगी। एग्जिबिट्स में क्या है, आपके पास ये अकाउंट डिस्क्रिप्शन दे रखी है, ठीक है। ऑपरेशन चेकिंग अकाउंट, ठीक है, स्पेशल प्रोजेक्ट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। उसके बाद इसकी रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दे रखी है, फिर आपकी बैंक रिकंसिलेशन दे रखी है, एनी टाउन नेशनल बैंक ऑपरेशन चेकिंग अकाउंट। ये ऑपरेशन चेक इन अकाउंट क्या होता है? अरे ये अकाउंट्स दे रखे हैं डिफरेंट कंपनी के, अच्छा। ये रे ऑपरेशन चेकिंग अकाउंट, स्पेशल अकाउंट, सेविंग अकाउंट। तो अब आपको बेसिकली इसे एग्जिबिट्स को पढ़ना है और फिर चेक करना है कि क्या आपको क्या लग रहा है, क्या इश्यूज हो सकते हैं इसमें। काफी लंबा एग्जिबिट है ये। हाँ। चलो देखो, सबसे पहले क्या है यहाँ पर आपके, ये तीनों अकाउंट के बारे में दे रखा है। एक तो क्या जनरल लेजर पे कितना अमाउंट है, और प्रायर ईयर का अमाउंट दे रखा है, चेंज कितना आया है। तो करंट ईयर का अकाउंट बैलेंस ये समझे ना, ईयर 4 वाला। हाँ,
ओके। ये जीएल अकाउंट, ये जो स्टार्टिंग में दिया है वो क्या मतलब है? 1000-100, 1200? हम्म, ये जीएल अकाउंट तो जनरल लेजर पे हो गया, लेकिन ये क्या रेंज किस चीज की है ये तो सर से पूछनी पड़ेगी, क्योंकि सर को आइडिया होगा, उन्होंने बनाई होंगी एग्जिबिट्स। ओके। चलो एक बार चेक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ। उसके बाद ये बैंक रिकंसिलेशन दे रखी है। बैलेंस पर बैंक स्टेटमेंट आपका $120,000 था। उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स हैं आपकी, और जनरल लेजर वाला अमाउंट दे रखा है आपको। ठीक है, रिकंसिलेशन आइटम डिटेल्स दे रखी है, मतलब जो जो आपने ये रिकंसिलेशन एडजस्टमेंट की है उसमें किस किस चीज की एडजस्टमेंट की है। जो डिपॉजिट आपके ट्रांजिट में है, मींस जो अभी डिपॉजिट होने हैं बैंक में, तो आपने अपनी बुक में ऑलरेडी दिखा चुके हो। और ये आउटस्टैंडिंग चेक से रिलेटेड। ओके। ठीक है, उसके बाद है सब्सिक्वेंट पीरियड बैंक एक्टिविटी। सब्सिक्वेंट पीरियड का मतलब कि जो आपके आफ्टर बैलेंस शीट डेट जो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, आपने उस ट्रांजेक्शन्स को चेक किया। ठीक है, क्यों चेक कर रहे हो? क्योंकि अगर कंपनी ने ये चेक्स दिखा रखे हैं तो ये चेक्स कल को क्लियर या डिपॉजिट हुए हैं या नहीं हुए, उसके लिए आप ये चेक करते हो यहाँ पर। कि जैसे सपोज यहाँ पर क्या है आपके पास, चेक नंबर 94 है। चेक नंबर 94 आपका आउटस्टैंडिंग चेक था, मतलब कल को कंपनी बैंक से विड्रॉ होगा 18,000 का। तो यहाँ चेक करो, हो रहा है विड्रॉ। हाँ ठीक है, चेक 103 हो गया आपका इंश्योरेंस का, ये भी हो रहा है। हाँ। आपका 101 और 99 नंबर चेक। 101 ये रहा $15,000 का, और 99। 99 चेक दिख रहा है आपको कहीं? नहीं। नहीं। सो इसका मतलब 99 चेक रिगार्डिंग इश्यूज हैं, क्योंकि ये आपका विड्रॉ ही नहीं हुआ अमाउंट कंपनी से। देखो यहाँ पर ए भी नहीं लिखा हुआ। ए का मतलब क्या है कि जो ट्रेस हो चुका है, जिसमें कोई ओके। एक्सेप्शन नहीं मिली। तो इसमें एक्सेप्शन मिली आपको 99 चेक पे। नहीं। 99 चेक पे एक्सेप्शन मिली है ना, कि नहीं दिख रहा हमें हाँ कहीं? हाँ, अच्छा हाँ। ठीक है, तो ऐसे मतलब आपकी ये रीड होती है। अच्छा, उसके बाद अब ये आपके डिपॉजिट इन ट्रांजिट हैं, कि जो आपके कल को बैंक में डिपॉजिट होंगे 25, 12 और 30,000 का अमाउंट। तो 25 का हो रहा है, 30 का हो रहा है, 12 का हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी ठीक है आपके। ठीक है, हाँ। ओके। अच्छा, यहाँ आपको कुछ एडिशनल इन्फो भी दे रखी है कि फर्स्ट पर जनवरी 8 ईयर 5 डिस्कशन विद जी किम द क्लाइंट्स कंट्रोलर, दिस पेमेंट रिलेट टू अ डिपॉजिट ऑन अ पीस ऑफ न्यू मशीनरी पर आवर एग्जामिनेशन spotting invoice for this the deposit was recorded in the appropriate period। so ये जो आपकी ये डिपॉजिट दिख रहा है 47,000 का, हाँ। ये आपका मतलब उन्हें कोई इश्यू मिला और ये दे रखा है कि जब ये डिस्कस किया गया तो ये पता चला कि ये जो इसके रिगार्डिंग जो स्पॉटिंग इनवॉइस है वो करेक्ट पीरियड में रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद है बैंक कंफर्मेशन वाज रिसीव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द बैंक। जो बैंक से आपको कंफर्मेशन मिली है रिगार्डिंग कुछ अकाउंट्स की, जैसे ऑपरेशन चेकिंग, स्पेशल प्रोजेक्ट चेकिंग अकाउंट की। ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपकी ये है सेविंग्स अकाउंट की कंफर्मेशन जो आपने लिया बैंक से। तो हाँ एज पर बैंक योर बैलेंस इज 415। चलो, अब ये थी आपका डेटा। हाँ। अब मुझे ये बताओ, ये तो थी आपकी एज पर जनरल लेजर अमाउंट हम्म। 138। अगर आप हाँ। चेकिंग अकाउंट का देखोगे 138 है, लेकिन अगर आप बैंक से इसकी कंफर्मेशन लोगे, तो चेकिंग अकाउंट
कि आपकी ऑपरेशंस अकाउंट की 120,000 है बैंक कंफर्मेशन, हाँ, ठीक है, और जबकि आपकी उसकी कितनी है 138। 138, तो यहाँ आपने रिकंसाइल करके देखा 120 को 138, रिकंसाइल करने पर ये आइटम एडजस्ट करी और हाँ, रिकंसिलेशन हो चुकी है जो कम, लेकिन रिकंसिलेशन करते वक्त जो आपने ये आइटम्स ले रखी हैं कंपनी ने, उसको जब आपने चेक किया तो आपको कौन सा इशू दिखा है, ये एक्सपेंस, ये वाला चेक का इशू दिखा है 99 नंबर चेक का, हाँ। ये दिखा। चलो इसके लिए अब मुझे ये बताओ क्या अब एविडेंस आपको प्रॉपर मिले हैं या नहीं मिले। सो इशू तो एक रह ही गया है, तो इसके लिए मैं, क्या लगता है यस या नो, बताओ क्या लेट करूं। एविडेंस सारे बराबर है, बस वो 99 चेक का नहीं है। यस चूज करूं या नो। यस। अच्छा, उसके बाद इशू क्या आया आपका। वो जो चेकिंग अकाउंट था उसी के साथ इशू है हमें। एक मिनट, बट सेविंग अकाउंट के लिए भी हमें ये नहीं दिया है। अच्छा, नहीं दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट है। कर लो, ये लो, ये सिर्फ आपकी उसके लिए ही दे रखी है, ऑपरेशन चेकिंग। चेकिंग अकाउंट की रिकंसिलेशन दे रखी है, बाकी का भी चेक कर सकते हो आप। अ, आपकी प्रोजेक्ट सेविंग अकाउंट की 50,000 और इसकी 415 है, तो चेक कर लो क्या कंफर्मेशन में यही आया, ये 50,000 ही आया और ये 415 ही आया, तो इट मीन्स इशू सिर्फ आपका किससे था, ऑपरेशन चेकिंग अकाउंट का इशू था जिसके लिए आपने रिकंसिलेशन कर ली। हाँ। तो यहाँ पर आपके पास जो बैलेंस था वो मैच नहीं हो रहा था ना, was was traced to balance for bank reconciliation with trivial differences, balance for saving account balance, सेविंग और चेकिंग का तो आपका कंफर्म हो रहा है, सिर्फ ऑपरेशंस में दिक्कत आ रही है। हाँ। सेकेंड ऑप्शन होगा ना, बैलेंस फॉर द ऑपरेशन चेकिंग अकाउंट, बैंक कंफर्मेशन वाज ट्रेस्ड टू द बैलेंस फॉर द बैंक रिकंसिलिएशन। ठीक है, अब आप एडिशनल प्रोसीजर आप क्या परफॉर्म करोगे। इन्वेस्टिगेट ऑल डिफरेंस। ओके, डन। हाँ। सो नेक्स्ट बताओगे, trace deposit in transit on the bank reconciliation to the subsequent period bank activity, आपने डिपॉजिट इन ट्रांजिट को सब्सिक्वेंट पीरियड बैंक एक्टिविटी से चेक कर लिया था, क्या डिपॉजिट वाले में कोई इशू दिखा आपको। नहीं। ओके, सो यहाँ पर कोई इशू नहीं दिखा, नो इश्यूज वर नोटेड। नो इश्यूज। हम कोई और आगे फर्दर प्रोसीजर भी नहीं करेंगे ना। ओके, चलो नेक्स्ट बताओगे। और आउटस्टैंडिंग चेक्स, तो एक चेक आउटस्टैंडिंग है तो उसके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। एविडेंस फिर, नहीं यस है। या नो। अच्छा, क्या इशू दिखा है आपको, ये लो अपना। एक आउटस्टैंडिंग चेक हाँ। क्लियर नहीं हुआ, तो उसके लिए आप एडिशनल टेस्टिंग क्या करोगे। अब- ये अभी वैसे हम जल्दी कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा सारे ऑप्शन अच्छे से पढ़ के देना आंसर। ओके। ऊपर वाला ऑप्शन दिखाना एकदम।
ऊपर वाला, ओके। Outstanding checks that did not clear the operating ये subsequent period bank account. हाँ, propose an adjustment to write off, review the सब नहीं, वो underlying। फर्स्ट लाइन नहीं देखा था मैंने। थर्ड, ठीक है, थर्ड। ठीक है, आपको वो आउटस्टैंडिंग चेक के रिगार्डिंग चेक कर सकते हो कि वो क्या प्रॉपर रिकंसाइलिंग आइटम थी या नहीं। हाँ, ठीक है, चलो फोर्थ, scan the subsequent period bank activity for significant unusual item near the year end, obtain explanation and review spotting documentation for such transaction and ensure that the items are included on the bank reconciliation। ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करना तो। आपने सब्सिक्वेंट पीरियड बैंक एक्टिविटी चेक करी और कोई अगर अनयूजुअल आइटम दिख रही है तो यू ऑब्टेन दी एक्सप्लेनेशन और डॉक्यूमेंटेशन, जैसे मैंने आपको वो बताया था कि 47,000 का अमाउंट यहाँ पर दे डिपॉजिट जो रखा था होता है। ना, कि हाँ, उसको जब आपने ट्रेस किया तो वो पता चला कि वो आपका डिपॉजिट आया किसी न्यू ये मशीनरी मशीन का है। से रिलेटेड, और वो आपका रिपोर्ट भी किया गया अप्रोप्रिएट पीरियड में। तो इसके रिगार्डिंग आपको बताना है क्या ये आपको एविडेंस प्रॉपर मिला, अगर मिला या नहीं मिला। नहीं मिला है ना, क्योंकि कोई इनवॉइस या कुछ तो है नहीं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो दिया है। क्यों, उसमें क्या था नहीं। लिखा हुआ है कि मिला हुआ है, बट इधर किधर दिया नहीं है। नहीं, वो तो देखो डिस्कशन की कंट्रोलर से, तो दिस पेमेंट पता चला कि जो पेमेंट है वो आपका पीस ऑफ न्यू मशीनरी से रिलेटेड डिपॉजिट है, और पर आवर एग्जामिनेशन द स्पॉटिंग इनवॉइस फॉर न्यू मशीनरी द डिपॉजिट वाज रिकॉर्डेड इन द अप्रोप्रिएट पीरियड, कि जब आपने इनवॉइस चेक किया तो वो अप्रोप्रिएट पीरियड में रिकॉर्डेड था। ठीक है, तो यस, यस कर सपोर्टिंग दूं। डॉक्यूमेंट्स है। हाँ। और क्या इशू क्या दिखा था आपको। द फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ पक्का। टेस्टिंग शायद। और इसमें आप एडिशनल टेस्टिंग करोगे या नहीं। नहीं। हम्म, नहीं। नहीं। ठीक है, ओके, चलो देखते हैं। और डरना मत, क्योंकि फर्स्ट टाइम में गलत भी हो सकते हैं। हाँ, 50%। ठीक है। चलो देखो, फर्स्ट में आपके एविडेंसेस प्रॉपर नहीं थे, बैंक कंफर्मेशन फॉर द सेविंग अकाउंट वॉज डायरेक्टली, अच्छा हमने ये नोट नहीं किया कि जो आपकी कंफर्मेशन है सीधा क्लाइंट से आ रही है। ओके। हाँ, और उसके बाद क्या है, एक मिनट, ठीक है, हैव द बैंक रीसेंड द कंफर्मेशन डायरेक्टली टू द ऑडिटर। ओके। चलो नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट यही है ना आपका, डिपॉजिट रिगार्डिंग, हाँ ये हमारा ठीक हाँ, है, यस। ठीक है, उसके बाद ये भी आई थिंक हमारा ठीक है, नो हाँ, वन अंडरस्टैंडिंग चेक और रिव्यू। ठीक है, ये भी ठीक है। लास्ट वन में इशू है फोर्थ, आपको नहीं मिला, ए सिग्निफिकेंट क्लियरिंग अकाउंट इन द सब्सिक्वेंट वाज नॉट वाउच टू स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट, or obtain an explanation for significant clearing on the operation checking account। Okay, ठीक so है। yes, ये वो आपका रिगार्डिंग वही था जो हमने किया था ना, कि वो एक आइटम आपकी ये अमाउंट आया हुआ है, लेकिन उसके रिगार्डिंग जब पूछा, ठीक है, ये इसी से रिलेटेड था आपका ये। ओके, तो पता चला आपको हाँ, मतलब कहाँ पर हाँ, हमने पता चला। प्रॉब्लम कहाँ पर आई, हमने तो ये अच्छे से रीड नहीं किया।
ठीक है, आपकी ये कंफर्मेशन सीधी मैनेजमेंट दे रही थी और जबकि आपको सीधी बैंक से लेनी चाहिए थी टू बी मोर रिलायबल। यस, ओके, एक दो सो थोड़ा स्टिमुलेशन बहुत आइडिया कैलकुलेशन का। हाँ बाकी मतलब अच्छा था कि फर्स्ट टाइम में आपको कम से कम 50% तो समझ में आया। तो मतलब ऐसे ही आपको अच्छे से एक बार रीड जरूर करनी है चीजें और फिर सोच समझ हाँ के आंसर देना है। ओके, तो मतलब हम एक दो और रखेंगे इसके लिए भी, सिमुलेशन के लिए भी, जैसे जैसे अब आपका ये होता जाएगा, ठीक है। थ्योरी होती जाएगी। ठीक है, साथ साथ प्रैक्टिस के भी रख लेंगे कुछ सेशंस। ओके, सो कोई डाउट? हाँ ओके देन बाय। फिर हम, ओके बाय।